Okay, fine. Okay, guys. So, a very warm good morning one more time. And yes, welcome for JavaScript and React JS course. So, in the last session, हमने ये देखा था कि basically basics of JavaScript. Okay, we have seen the basics of JavaScript. कि JavaScript क्या होती है और उसे आप कैसे यूज कर सकते हो. Okay, that was the main agenda which we have discussed in the previous session. Okay. आज के सेशन में हम फंडामेंटल्स पे कंसंट्रेट करेंगे. वी विल कंसंट्रेट ऑन द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में ऐसे कौन से बेसिक फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए. ओके, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न इट ओवर हियर. अभी हम जो जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं वो फ्रंट एंड में रहेगी. फ्रंट एंड में मतलब यूजर इंटरेक्शन रहेगी. ओके, दैट विल बी द यूजर इंटरेक्शन. Okay, the JavaScript will be in the front end. That will be a user interaction. तो हम भी वही implementation करेंगे. We will just implement the same scenario. That is a user interaction. Okay, we will just implement that one. So now I'm just going to share my screen. So please inform me once the screen is visible to you guys. Yes, it's visible. Yes, yes, sir. Okay, it's visible. Good. So yes, guys. So I have opened the project in VS Code. Okay, मैंने project को VS Code में भी open किया था जो हमने कल देखा था. So simply I will just create a file over here. This is going to be just I will create a folder now. Okay, तो Yes, JavaScript पे काम करने के लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड द JS फोल्डर. ओके, या फिर हम एक छोटा सा सिंपल सा काम करेंगे. अपार्ट फ्रॉम गोइंग इन दिस वे, व्हाट वी विल डू, या व्हाट वी कैन डू, just I will create a day over here. Okay, my system is a bit slow. Okay, just give me a minute. So this was our day one. So let's move it and let's create a day two. So where will we start everything from the scratch. Okay, हम सारी चीजें scratch से start करेंगे फिर से. So we have seen that yes, JavaScript is a programming language which can be used for developing different applications. तो आप different applications से develop कर सकते हैं. Okay, अभी हम जो concentration करने वाले the topic which we are going to discuss, they are the front end topic. मतलब हम ज्यादा करके ब्राउजर से कनेक्ट रहेंगे. I'm sorry guys, हम ज्यादा करके ब्राउजर से कनेक्ट रहेंगे. Okay, we will connect maximally by using the browser itself. Okay, we are going to implement maximum part. तो ये टॉपिक हम देखेंगे. So the very first, just I will create a index.html. The very first thing which I will do, मैं यहाँ पे index.html file create करूँगा. And also I will create one more folder over here, that is a JS folder. Okay, by which I JS folder के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे. Okay, जैसे कि main.js, main.js. Just I will hit it. Fine. So now just I will create the basic skeleton of HTML. Okay, just I will say a doc type HTML, HTML. So let's wait.
and then I will just create the head in this. After that, title with JavaScript fundamentals. Okay, and just we'll create a body over here, and in just I will make it live, और इसे हम live कर okay, let's make it live. So जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि हम चीजें जो टेस्ट करते हैं, वी टेस्ट द थिंग्स ऑन कंसोल. सो कंसोल के लिए हमने मेथड देखी थी, कंसोल डॉट लॉग, राइट, कंसोल डॉट वार्निंग और कंसोल डॉट एरर. ओके, कंसोल डॉट एरर. सो वी हैव सीन दिस थ्री. अभी इनमें से हम कौन सी यूज करेंगे? तो कंसोल लॉग फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये दोनों नहीं यूज करेंगे. सो जस्ट आई विल से कंसोल डॉट लॉग हेलो. ओके, Yes, sir. फाइन. So let's work on this now. Okay, it's actually saving it. Fine. So let's wait for some minute. And we have started with the live server also. It will be get started. So just wait for a minute, guys. Okay. तो हमने ये भी देखा था कि डेवलपर्स टूल को हम यूज कर सकते हैं. तो राइट क्लिक करके वी कैन इंस्पेक्ट द थिंग इन डेवलपर्स टूल. ओके, we can inspect the things in the developers tool. So yeah, so let's move towards the part. तो मैं डेवलपर्स टूल को ये तीन डॉट्स पे टिक करके उसे लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, दैट इज अ डॉक टुवर्ड्स सॉरी राइट साइड में लेके आऊंगा. एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश द पेज, या इट्स रनिंग परफेक्टली. और हमें जावास्क्रिप्ट के मेन फाइल को हुक करना है. सो वी विल यूज अ स्क्रिप्ट एलिमेंट with src attribute, and then we will use javascript main.js. so ये hook हो जाएगी. The file is been hooked to html, and now we can run the javascript code. A simple and sober, a simple and sober. Now अभी अगर मुझे यही हेलो अगर 10 बार लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट. आई कैन राइट इट लाइक इन दिस वे. आई हैव जस्ट यूज 4 टाइम. जैसे मान लेते कि मुझे यहाँ पे 4 बार उसे प्रिंट करना था, तो मैंने 4 बार उसे प्रिंट किया. बट ओके, बट टेक एन एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ हेलो अगर मुझे 1 2 3 अगर करना है, तो मुझे हर एक हेलो को चेंज करके 1 2 3 लिखना पड़ेगा, राइट. 1 2 3. तो इन जावास्क्रिप्ट अगर आपने ध्यान से देखा, तो जो नंबर्स होते हैं वो हम कभी भी कोटेशन में नहीं यूज करते. जो नंबर, जब हम नंबर्स यूज करते हैं तब हम कभी भी डबल कोट या फिर सिंगल कोट यूज नहीं करते. लेकिन जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, मतलब जब हम कैरेक्टर यूज करते हैं जैसे हेलो, तो उस कंडीशन में हमें उसे सिंगल कोट में ही यूज करना पड़ता है. So you can see that I have just used 1 2 3 over here. अभी अगर मान लेते कि मैंने अगर यहाँ पे 1 2 3 ए अगर लिखा, तो ये मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज इसमें एक सिंगल कैरेक्टर है. तो जब कोई भी नंबर के साथ अगर आप कैरेक्टर या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल यूज करते हो, ओके, तो वो आपको सिंगल कोट में ही देना पड़ता है. तो जावास्क्रिप्ट में आप नंबर जो है, कोई भी नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आप विदाउट सिंगल कोट दे सकते हैं. बट उसके साथ अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर रहा, ओके, जैसे डॉलर, ओके, देन लाइक से हैश अंडरस्कोर कुछ भी रहा, या फिर कोई अगर अल्फाबेट अगर रहा, तो उस कंडीशन में आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ता है. ओके, दैट इज अ रूल.
नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लेते हैं कि हम अगर ये पर्टिकुलर 1 2 3, ओके, ये पर्टिकुलर 1 2 3 में अगर 4 बार प्रिंट कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअली ऐसे लिखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 2 3 को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर इट समवेयर। ओके, वी कैन स्टोर इट, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। तो इसे स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ओके, सो देखिए वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, उसके नाम में दिया है, वेरिएबल। मतलब जो चीजों को रन टाइम उस वो वेरी भी हो सकता है। वेरी मतलब बदलाव लाना, एंड एबल मीन्स एबिलिटी होना। तो जो जिसमें डेटा वेरी हो सकता है, या फिर जिसके पास ऐसे एबिलिटी है जिसमें डेटा वेरी हो सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल। ओके, सो दैट इज अ द थिंग विच वी आर गोइंग टू सी। सो वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? So there are three ways to create a variable. First, you can use a var keyword. Also, you can use a let keyword, and also you can use a const keyword. तो हमारे पास तीन कीवर्ड होते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, var कीवर्ड, let कीवर्ड एंड const कीवर्ड। जिनमें से var कीवर्ड पुराने वर्जन जावास्क्रिप्ट से आया है, जिसे हम ES5 कहते हैं। ओके, और ये जो let और const है, ये नए जावास्क्रिप्ट से आया है, जिसे हम ES6 कहते हैं। तो जब हम रिएक्ट या फिर कोई भी मॉडर्न कोड लिखते हैं, जैसे कि नोड जेएस में वगैरह, तो हम लेट का ही यूज करते हैं। और लेट का एडवांटेज भी है। ओके, इट इज हैविंग सम एडवांटेजेस। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। अभी हम सबसे पहला तरीका वैर सीखने वाले हैं यहाँ पे। बाद में फिर आगे चल के हम लेट और कॉन्स्ट भी समझेंगे। ओके, एक बार आपका वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल क्लियर हो गया, देन वी विल सी द लेट एंड कॉन्स्ट ऑल्सो। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, sir. No. ओके, सो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम वैर कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, सो वी यूज अ वैर कीवर्ड, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें उसका नेम देना पड़ता है। सो आई विल जस्ट से लाइक से दिस, लाइक से अ नंबर, फिर आई विल जस्ट से अ टेक्स्ट इक्वल्स टू, आई विल राइट हेलो। ओके, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेलो इन कंसोल डॉट लॉग, हम उसे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 लिखा था, तो हम उसे टेक्स्ट से चेंज कर सकते हैं। सी, अभी यहाँ पे आपको डबल कोट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कभी भी डबल कोट नहीं देते, बिकॉज हमने उन्हें यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम वेरिएबल के अलावा कोई भी कैरेक्टर ओरिएंटेड अगर डेटा डेटा अगर असाइन दे रहे हैं लॉग में, तो आपको सिंगल कोट यूज करना ही पड़ता है। इट्स कंपलसरी, या फिर आपको एरर आएगा, एंड यू विल सी स्टिल इट विल वर्क परफेक्टली। देखिए ये वर्क हो रहा है, इट्स प्रिंटिंग द हेलो। इन द सेम वे, अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे इसे चेंज अगर कर दिया 1 2 3, ओके, सो सी 1 2 3 इज देयर। अभी जावास्क्रिप्ट में आप जब भी कोई वेरिएबल लिखते हैं, तो आपको वही कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये स्ट्रिंग लेगा, या फिर ये कैरेक्टर लेगा, या फिर ये नंबर लेगा। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट की डिटेल्स है, जैसे कि स्टूडेंट नेम। ओके, टेक एन एग्जांपल, स्टूडेंट नेम। तो हम स्टूडेंट का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। वी कैन गिव अ स्टूडेंट नेम, लाइक से स्टूडेंट नेम इज लाइक से दीपक कुमार। तो देखिए कैरेक्टर तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो जब हम कैरेक्टर लिखते हैं, तो बेसिकली हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना है, सो आई विल जस्ट से स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर। सो यहाँ पे मैं 1 2 3 यूज करूंगा।
ओके, तो सी स्टूडेंट रोल नंबर इज 1 2 3। तो ये बेसिकली एक नंबर होता है। ओके, ये एक नंबर टाइप है। ऊपर वाला जो है उसे हम स्ट्रिंग टाइप कहते हैं, नीचे वाला जो है उसे हम नंबर टाइप कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का मार्क्स है, लाइक से आई एम हैविंग अ स्टूडेंट मार्क्स ओवर हियर। सो टेक एन एग्जांपल, आई एम हैविंग स्टूडेंट मार्क्स लाइक से 50.70 आउट ऑफ 100, उसे 50.70 मार्क्स मिले। तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, डेसिमल ओरिएंटेड वैल्यू। तो ये भी बेसिकली हम इसे नंबर ही कहते हैं। तो फ्रैक्शन भी हुआ तो भी नंबर, अगर विदाउट फ्रैक्शन हुआ तो भी नंबर। ओके, माइनस प्लस कोई भी साइन अनसाइन हुआ तो भी नंबर ही होता है। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट इज प्रेजेंट और नॉट, मुझे ऐसा लिखना है, इज प्रेजेंट। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, और अगर प्रेजेंट है तो हम यस कह सकते हैं, या फिर हम उससे हम नो भी कह सकते हैं। ओके, बट हमारे पास दो ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे दो कीवर्ड्स है जो हम इन एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऐसे कीवर्ड है, एक तो है ट्रू। ओके, या फिर ट्रू मतलब यस, प्रेजेंट। और यहाँ पे अगर मैंने फॉल्स लिखा तो इट विल से नो। तो एक तो हम ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज नहीं कर रहा, तो ये एक स्पेशल रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो इसे हम टेक्निकली बुलियन कहते हैं। ओके, वी कॉल इट एज अ बुलियन नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे मान लेते कि मुझे स्टूडेंट का, स्टूडेंट के लाइक से लास्ट मार्क्स चाहिए। ओके, जैसे मान लेते कि आपको ये दिया है, पता ही नहीं कि क्या है। ओके, सो यू विल जस्ट यू असाइन दैट वन। ओके, तो आप उसे वैल्यू असाइन नहीं करोगे। जब हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, हम उसे अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, अनडिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू दी है एज अ स्ट्रिंग टू द स्टूडेंट नेम, रोल नंबर को नंबर दिया है, मार्क्स को एक फ्रैक्शन वैल्यू दी है, उसे भी हम नंबर ही कहते हैं। देन वी हैव गिवन अ ट्रू, दैट इज अ बुलियन। ओके, और फिर स्टूडेंट के मार्क्स से जो अगर आपको नहीं है आपके पास, तो आप उसे यहाँ पे अगर असाइन नहीं किया, कुछ भी वैल्यू अगर आपने असाइन नहीं की, तो अनडिफाइन होती है। ये बात याद रखिए। एंड द लास्ट इज लाइक से, इफ आई एम यूज लाइक से स्टूडेंट पेरेंट, पेरेंट डिटेल्स। ओके, पेरेंट डिटेल्स। अगर मान लेते कि मुझे ऐसा एम्प्टी वैल्यू असाइन नहीं करनी, तो हम इसे नल भी डिफाइन कर सकते हैं। नल भी एक रिजर्व कीवर्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नल एक डेटा टाइप है। नल इज नॉट अ डेटा टाइप। यहाँ पे मतलब डेटा नहीं है, डेटा की टाइप नहीं है नल। इट्स अ रिजर्व वैल्यू, रिजर्व कीवर्ड विच वी कैन यूज एज अ वैल्यू। तो इसे बेसिकली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। तो अगर आपने ध्यान से देखा समराइज पार्ट, तो जावास्क्रिप्ट में आप एक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ओके, अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट, इन अलग अलग डेटा के टाइप में डेटा डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टोटल 5 तरीके की डेटा टाइप्स होती है: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट। अभी जो ऑब्जेक्ट है आगे चल के ये अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब इसमें भी अलग अलग पार्ट है, जैसे कि एरे, उसके बाद जेएस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फंक्शंस एंड आल्सो अ नल। तो ये आगे चल के अलग अलग टाइप पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इनकी जो टाइप होती है वो ऑब्जेक्ट ही होती है, ये याद रखिए। ओके, सो टेक्निकली हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ओके, बुलियन, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट्स है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है।
या फिर कौन सी होती है? तो अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम आगे चल के देखेंगे, बट ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग है, यहां पे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग, ओके, नंबर, बुलियन, ओके। सो टेक्निकली ये होती है, हाँ अनडिफाइन हम ज्यादा करके यूज नहीं करते, ओके। और हम जब भी नल भी है, ओके, वी जस्ट रेफर इट एज इन ऑब्जेक्ट। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, डेटा टाइप्स, या फिर ऐसे भी कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को ही आगे चल के कोई कोई कॉम्प्लेक्स भी बोलता है, कॉम्प्लेक्स टाइप। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके, नॉन प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आते हैं अरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ओके। ये याद रखिए, अभी फंक्शन को हम कभी भी रेफरेंस से नहीं यूज करते, तो ज्यादा करके आप अरे और ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। So in JavaScript, arrays and objects are non-primitive or complex, and primitives are string, number, and boolean. Okay, so this is something which is very very important. Okay, ये दोनों चीजें याद रखिए। So डेटा टाइप क्या होती है कि किस टाइप का डेटा होगा, ओके। A data type is nothing but in which type we can store a data. So we can store a data in string, number, boolean, undefined, and object. And they are also specified as primitive data types and non-primitive data types or complex type. So primitive data types are string, number, and boolean. Non-primitive data types are array and object. Okay, typically we distribute them in the such a scenario. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, sir. Okay. Yes, any question? Nitin, No, it's clear? yes. Okay, so Yes, sir. ये मैं क्यों इतना स्लोली ले रहा हूँ? द रीजन इज दैट कि यही फंडामेंटल्स है, ओके। और बात बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि यही पे उनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी या फिर प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, okay. Many students face the issues over here only, and they say that we know the JavaScript but we do unable to implement it. तो ये उसी चीज के लिए होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जावास्क्रिप्ट में कैस कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, ओके। एंड दैट मेजरली हैपेंस इन द डेटा टाइप्स ओनली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो भी हम डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, अभी आप अभी कभी कभी ये भी हम बोल सकते हैं, इंटरव्यू में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है दैट हाउ टू चेक अ डेटा टाइप। तो किसी को पता है क्या डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं हम? तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये अलग अलग डेटा टाइप्स है, मतलब मेरे पास अलग अलग वेरिएबल्स है, तो मुझे उनकी टाइप्स चेक करनी है। सो हाउ टू चेक अ डेटा टाइप? लाइक से आई एम हैविंग अ वेरिएबल called as a text equals to hello. So can I check its type? The answer is yes. हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं टाइप ऑफ, ओके। और उस टाइप ऑफ के सामने आप जो भी वेरिएबल लगाओगे आपको उसकी डेटा टाइप मिलेगी, सिंपल एंड सोबर। तो इफ आई जस्ट यूज console.log, इफ आई जस्ट से टाइप, सॉरी, इफ आई जस्ट से टाइप, तो आपको उसकी टाइप डिफाइन होगी। सो सी, द स्ट्रिंग इज अ टाइप, स्ट्रिंग इज अ टाइप। अगर मैंने यहीं पे अगर 1 2 3 अगर दिया तो उसकी टाइप नंबर होगी। इफ आई यूज लाइक से 1 2 3 डॉट 5 4 5, तो वो भी एक नंबर ही होगा। अभी लॉग में एक अच्छी चीज ये है कि आप साइमल्टेनियसली कॉमा देके जो चाहिए वो भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेटा टाइप के बाद उस टेक्स्ट की भी वैल्यू पास करनी है, तो हम कॉमा देके वो भी कर सकते हैं। तो देखिए एक ही लाइन में मुझे दोनों आ जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रू यूज करूंगा,
ओके सी, मुझे यहाँ पे बुलियन वैल्यू आएगी, दिख रहा है बुलियन एज अ टाइप। फिर हम यहाँ पे नल पास करेंगे। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे उसी तरीके से हम यहाँ पे एरे पास करेंगे। अभी एरे आगे चल के हम देखने वाले, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एरे की भी डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। और उसी तरीके से हम जेएस ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे, करली ब्रैकेट देंगे। सो यहाँ पे आपको वो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? द डेटा टाइप्स आर स्पेसिफाइड वॉट एवर वी हैव सीन ऑन द वेरी टॉप। और अगर मैंने कुछ दिया ही नहीं उसको, देखिए मैं टेक्स्ट के सामने कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड देगी। और अनडिफाइंड का डेटा भी अनडिफाइन ही होता है। सो उसकी डेटा टाइप भी अनडिफाइन है और उसका डेटा भी अनडिफाइन होता है। सो दिस इज व्हाट अ जावास्क्रिप्ट हैज विद इट। अभी आप मुझे बताओ, पूछोगे दैट दीपक व्हाई वी आर हैविंग अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है गाइस, ओके सी, अनडिफाइंड एक होता है और एक होता है एरर विच इज कॉल्ड एज अ नॉट डिफाइंड। दिख रहा है? नॉट डिफाइंड। सो अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड अलग अलग चीजें होती है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि टेक एन एग्जांपल लाइक से आपके पास सिम कार्ड मोबाइल है और सिम कार्ड भी है, लेकिन सिम में रिचार्ज ही नहीं, तो क्या आप कॉल कर सकते हैं क्या? कॉल कर सकते हैं? नहीं। नहीं, बट आपके पास सिम कार्ड है, मतलब नंबर है, राइट? बट अगर मान लेते हम्म, हैं कि आपके पास सिम कार्ड ही नहीं है, तो आपके पास सिम मोबाइल नंबर रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं, राइट? सो इन द सेम वे यहाँ पे भी वही है। अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसे मेमोरी मिलती है। और जावास्क्रिप्ट में हिप नाम की मेमोरी होती है, सुना है कभी हिप मेमोरी? यस सर। हाँ, तो हिप मेमोरी होती है। ओके, वी हैव अ हिप मेमोरी। तो जावास्क्रिप्ट में हिप मेमोरी होती है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक मेमोरी मिलती है, उसको एक टेम्पररी मेमोरी मिलती है। तो अगर मेमोरी मिल गई तो वो और उसको अगर वैल्यू नहीं मिली है, इसका मतलब है कि उस मेमोरी पे एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड मतलब एक गार्बेज वैल्यू है, टेम्पररी गार्बेज वैल्यू। ओके, और अगर मान लेते हैं कि मैं कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा हूं जिसको मेमोरी ही नहीं है, जैसे कि आपके पास सिम कार्ड ही नहीं, तो आपके पास नंबर नहीं रहेगा। तो वो ऐसा कहता है, जब आपको आता है नॉट डिफाइंड, मतलब उसको मेमोरी ही नहीं मिली है। ओके, तो जब कोई किसी चीज को अगर मेमोरी नहीं मिलती है ना, तो ये एरर आता है, अनकॉट एरर, रेफरेंस एरर, कि उसका रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कभी कभी जब आप कोई नंबर डायल करते हो तो आपको मैसेज आता है, कॉल कॉल पे वो, मतलब आपको एक लाइक से ऑन ऑन कॉल ओनली यू जस्ट गेट हर्ड दैट द नंबर विच यू आर ट्राइंग इज नॉट अवेलेबल। ऐसा हुआ है बहुत बार, राइट? आप कोई नंबर ट्राई करते हो और वो आपको सिंपली बताता है दैट नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यस नॉट सर। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है कि उसको मेमोरी ही नहीं है। दैट इज व्हाट अ रेफरेंस इज। तो एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड में भी हमें अनकॉट एरर, रेफरेंस एरर आता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो अगर मेमोरी नहीं है वेरिएबल को, तभी आपको ये एरर आता है। तो याद रखिए, अनकॉट एरर रेफरेंस जब भी आएगा, तब माइंड में एक ही चीज रखनी है, अनकॉट एरर रेफरेंस मतलब क्या, कि उसको मेमोरी नहीं है। ओके, मेमोरी नहीं मिली है, ये याद रखिए। So whenever you will get such a kind of error, means memory is not assigned. Okay, so if you get an error like this, it means that memory is not assigned. So it doesn't have a memory. Don't have a memory. Okay, or not available in memory. That's it. तो ये आपने डिक्लेयर नहीं किया है। और अनडिफाइन अगर आता है तो मतलब मेमोरी है बट वैल्यू नहीं है उसमें। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ यस रहा सर। है? या सो जब भी आपको अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन का मतलब क्या है? दैट मेमोरी इज देयर। So variable is assigned with a memory. Sorry, variable is initiated with the memory. Okay, so variables has
or have a memory. But on that memory, data is not there, but don't have a data. तो ये दो डिफरेंस है. ओके, तो एरर आना वो अलग चीज होती है, अनडिफाइन आना अलग चीज होती है. ओके, एरर नॉट डिफाइन. समझ में आ गया? देखिए ये एरर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट. टिल हियर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? My side, no, sir. यस नितिन, एनी क्वेश्चन? No, no. ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. हाउ वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज. आप वेरिएबल हमेशा एक कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे. ओके, so you will start a variable with a character like say abc. आप ऐसे भी दे सकते हैं. ओके, दूसरी चीज ये है कि आप वेरिएबल कैपिटल में भी दे सकते हैं, abc लाइक से 1 2 3. उसी तरीके से आप वेरिएबल ए कैपिटल, बी और सी स्मॉल, वो भी आप कर सकते हैं. ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्मॉल बी सी कैपिटल, आप ऐसे भी दे सकते हैं. उसके बाद वेरिएबल में आप स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर यूज करके फिर आप उसको नंबर भी असाइन कर सकते हैं. मतलब मैं ऐसा भी दे सकता हूँ abc 4 5, ऐसा भी वेरिएबल हो सकता है. ओके, उसी तरीके से उसी तरीके से आप वेरिएबल को स्टार्टिंग में अंडरस्कोर देके भी नंबर दे सकते हैं 4 5. ओके, ऐसा भी वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं. ओके, ऐसा भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. या फिर आप सामने डॉलर देके भी 4 5 लिख सकते हैं, ऐसा भी वेरिएबल आप दे सकते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल एक्सेप्टेबल है, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं. जैसे कि where 1a, ऐसा वेरिएबल नहीं दे सकते आप. इट्स नॉट अलाउ. ओके, इट इज नॉट अलाउ. तो आप कभी भी नंबर स्टार्टिंग में नहीं दे सकते. उसके बाद आप स्टार्टिंग में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते, जैसे हैश, @ ओके, यू कांट गिव. तो सिर्फ दो स्पेशल सिंबल एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर या फिर डॉलर. इसके अलावा आप कोई भी तीसरा नहीं दे सकते. जैसे आप स्टार्टिंग में हाइफन भी नहीं दे सकते, सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हैं. अगर मान लेते कि वेरिएबल में दो वर्ड है, जैसे कि स्टूडेंट और नेम. ओके, तो आप उसे इस तरीके से अगर लिखोगे तो ये समझने में अच्छा होता है. आप दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. या फिर आप उसे जोड़ के भी लिख सकते हो, या फिर कैपिटल, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, सॉरी, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और दूसरे वर्ड का दूसरा लेटर कैपिटल दे सकते हैं. इसे कैमल केस कहते हैं. क्या कहते हैं? कैमल केस. Camel case. ओके, या फिर इसे हम कैमल केस कहते हैं. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल है उसे भी आप कैपिटल देके, जैसे स्टूडेंट नेम. तो इसे पास्कल केस कहते हैं, जो क्लास डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं. पास्कल केस. ओके, पास्कल केस. तो इसे हम पास्कल केस कहते हैं. तो आप पास्कल केस कर सकते हैं. ओके, या फिर आप बीच में अंडरस्कोर दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. तो इसे स्नेक केस कहते हैं. ओके, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं. सो आप इन तरीके से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इतने ही वेरिएबल्स के रूल होते हैं. ओके, इसके लिए अलावा आप कोई भी दूसरा रूल नहीं होता वेरिएबल को. बीच में आप डैश नहीं दे सकते, इट इज नॉट अलाउड. रिमेंबर, तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं. तो आइदर यू कैन हैव अ कैमल केस, पास्कल केस, या फिर स्नेक केस. आप तीनों में से कोई भी एक टाइप का वेरिएबल दे सकते हैं. ओके,
Any question, any query till here? No, sir. यहाँ तक सर क्लियर एक है? हेलो Yes, sir. सर, ये मीन्स ये कभी कभार मीन्स मैंने ऐसे ऑनलाइन देखा है और ऑफिस में भी ये दो बार अंडरस्कोर लेके भी लिखते हैं, सर कुछ मीनिंग है या जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं? हाँ, ये वाला स्टार्टिंग में। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, मैं बताता हूँ वो कब होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लेते कि मुझे लोकल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो हम लोकल वेरिएबल्स अंडरस्कोर या फिर डबल अंडरस्कोर करके लिखते हैं, लाइक से लोकल वेरिएबल्स। अभी डबल अंडरस्कोर यूज मत कीजिए, बिकॉज नोड जेएस में डबल अंडरस्कोर को स्पेशल मीनिंग है, सो दैट्स व्हाई मतलब रिजर्व्ड है कुछ डबल अंडरस्कोर, जैसे डायरेक्टरी, फाइल नेम्स, वो थोड़े से रिजर्व्ड है। तो सिंगल अंडरस्कोर आप देखिए लोकल वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ग्लोबल वेरिएबल हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं और लोकल वेरिएबल पहले हम अंडरस्कोर देते हैं। इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ओके, इसे समझने के लिए हम वो करते हैं, ओके, या। सो दिस इज व्हाट अ सिनेरियो इज। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? My side, no, sir. ये फिर जस्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। लोकल फिर और ग्लोबल मीन जो ऑल ओवर यूज होता है हाँ, वो हम वेरिएबल देखेंगे, अभी तक हमने वो के देखा बाद नहीं, में होता है। ओके हम ओके देखेंगे वो, ओके। अभी मैं आपने मुझे क्वेरी पूछी, सो आई हैव रिजॉल्व दैट क्वेरी, ओके। नहीं नहीं ओके ओके सर ओके। बट वी विल सी दैट कि लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लेते कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, जैसे कि वेरिएबल a इक्वल्स टू 10, तो बताइए मुझे इसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर Number. नंबर होगा, राइट? ऑब्वियसली डेटा टाइप नंबर ही होगा। सी, डेटा टाइप इज अ नंबर। ऊपर हमने एक कंसोल दिया था, उसे मैं कमेंट कर दूंगा। डेटा टाइप एक नंबर ही होता है, राइट? इट्स अ नंबर। अभी मैं आपको पूछूंगा कि अगर मैंने सिंगल कोट में दिया तो क्या होगा? क्या आएगा डेटा टाइप? String आएगा. स्ट्रिंग आएगा, राइट? So what is our expectation? What is our expectation that it must be a string? See, string आएगा। अभी अगर मैंने ट्रू दिया तो क्या आएगा डेटा टाइप? Boolean. बुलियन आएगा, एग्जैक्टली। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। बट अगर मान लेते कि मैंने अगर सिंगल कोट दिया तो क्या आएगा? स्ट्रिंग राइट, स्ट्रिंग आएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप सिंगल कोट में लिखते हो, कुछ भी लिखो आप सिंगल कोट में, कुछ भी लिखो, वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। सो अभी मेरा और एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ और एक वेरिएबल में डिक्लेयर करो, जैसे कि b इक्वल्स टू 20, एंड देन इफ आई जस्ट यूज console.log a प्लस b, तो क्या आउटपुट आएगा अगर मैंने एडिशन की यहाँ वहाँ पे? पे 30 आएगा. 30 ऑब्वियसली आउटपुट विल बी 30, राइट? लेकिन अगर मान लेते कि मैं अगर यहाँ पे सिंगल कोट अगर दे रहा हूँ तो अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा? वो string plus 20 आएगा. हाँ, मतलब क्या आएगा? 10 20 म्हणजे 10 आणि 20 ऐसा. एग्जैक्टली 1020 आएगा, राइट? आई विल गेट ए 1020। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ये प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं, ये दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, ओके। एक तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स अ मैथ ऑपरेशन, ओके, इट परफॉर्म्स अ मैथ ऑपरेशन, और a, a, a join operation of for the string, okay, a join operations. Now I will ask you one question. अभी अगर मैंने इसे अगर ऐड किया है तो ये 10 और 20, तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? का string और second का number. नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि where result हाँ सर. equals to a plus b,
और मैंने अगर अभी इसकी डेटा टाइप अगर चेक की तो रिजल्ट की डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग यस, नंबर होगी या फिर अभी स्ट्रिंग होगी? स्ट्रिंग होगी। नहीं, नंबर होगी सर। ओके, लेट्स सी। तो इसकी जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होगी। ओके, इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगी। ओके ओके, तो सॉरी। रिमेंबर व्हाई, बिकॉज यहाँ हाँ पे हाँ, स्ट्रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने माइनस यूज किया तो क्या आउटपुट आएगा? माइनस किया तो स्ट्रिंग ही आएगा सर। नहीं नहीं, डेटा टाइप नहीं, मैंने डेटा टाइप नहीं, रिजल्ट पूछा है। अगर अच्छा, मैंने रिजल्ट। 10 हाँ माइनस हाँ, ए तो माइनस 10 बी अगर किया तो 10 एक स्ट्रिंग है, तो अभी क्या आएगा आउटपुट? वही जो पहले वाला था, 10 और 20। मतलब माइनस हो जाएगा उससे। यस, क्या आ सकता है? यस नितिन। इसका कुछ आइडिया नहीं है मीन्स प्रॉपर वाला। ओके, सो देखिए, अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो मुझे आउटपुट -10 आएगा। क्यों? बिकॉज 10 माइनस 20 कितना है मैथमेटिकल इक्वेशन में? अगर 10 माइनस 20 अगर मैंने लिखा तो कितना आता है? -10 आएगा। -10 ही आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा रिवर्स कर दूंगा, ओके, तो बिकॉज ये समझने में आसानी होगी। ये 20 करता हूँ और ये 10 करता हूँ, तो 20 माइनस 10 कितना है आंसर? 10। 10। अगर मान लेते कि मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? तो 2। 2 आएगा, राइट, बिकॉज 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? 200। 200। 200, एग्जैक्टली। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 200। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक्सेप्शन किसको है? प्लस को। प्लस। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लस इज हैविंग टू फंक्शनैलिटीज। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, ज्वाइन भी कर सकता है। दो अगर स्ट्रिंग है तो ज्वाइनिंग भी करता है, ये याद रखिए। तो इसका यस सर। मतलब क्या होता है कि देखिए, जब हम प्लस यूज करते हैं तो वो डेटा टाइप के एसोसिएटेड काम करता है। अगर स्ट्रिंग है तो ज्वाइन करेगा, अगर मैथ है, अगर नंबर है तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और दोनों नंबर से तो। लेकिन जब प्लस, जब माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो ये सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगी। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, माइनस, डिवीजन और प्लस, ये रन टाइम वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर हैविंग द एबिलिटी टू कन्वर्ट कन्वर्ट a string number to pure number. They are having the ability to convert a string number to a pure number. ये वर्ड याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इट इज हैविंग द एबिलिटी टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग नंबर टू अ प्योर नंबर। तो ये इंटरनली होता है, दिस हैपन इंटरनली। ओके, दिस हैपन्स इंटरनली, मतलब जावास्क्रिप्ट खुद उसे करती है। दिस हैपन्स इंटरनली। ओके, इट इज डन बाय जावास्क्रिप्ट, याद रखिए। ओके, it happen internally and it is done by the javascript. Okay, it is done by the javascript itself. It is done by the javascript. It is done by the javascript. तो जब ये internally, yeah, it is done by the just a minute. It is done by the javascript, I'm sorry guys. Yeah, it is done by the javascript. तो जब ये चीजें इंटरनली हैपन होती है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन हो रहा है स्ट्रिंग नंबर का प्योर नंबर से, और ये इंटरनली होता है। तो इसे इम्प्लिसिट, इसे क्या कहते हैं हम? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। implicit type casting. Okay, we call it as a implicit type casting. We call it as a implicit type casting. Okay, तो हमारे पास implicit टाइप कास्टिंग होती है। implicit मतलब क्या? जावास्क्रिप्ट खुद ही कन्वर्ट करता है अंदर ही अंदर, लेकिन स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है ये, मतलब सॉरी, एडिशन ऑपरेशन के लिए ऐसा होगा नहीं, बिकॉज वो दो पर्पस के लिए बना है।
तो अगर माइनस, डिवीजन और या फिर मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये जावास्क्रिप्ट खुद कन्वर्ट करता है उसे। तो एक स्ट्रिंग नंबर को वो प्योर नंबर में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट जब प्लस ऑपरेटर की बात आती है तो ये इंटरनली कन्वर्ट नहीं करता है, तो हमें इसे फोर्सफुली बाहर से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वी कैन कन्वर्ट a string number a string number to a boolean, sorry, string number to a pure number externally also. Okay, we can convert it externally also. हम externally भी उसे convert कर सकते हैं. We can convert it externally also. Okay, and that is called as a explicit typecasting. That is called as a explicit typecasting. So we are having implicit typecasting and explicit typecasting. Okay, typecasting. सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास एक नंबर कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब हम एक नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर कंस्ट्रक्टर। सो टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग नंबर इनटू अ प्योर नंबर वी नीड टू यूज अ नंबर कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे हम नंबर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ओके, एक्सप्लिसिटली। एंड नाउ इफ यू सी माय आउटपुट इट विल बी 30 ओनली, बिकॉज हमने इस स्ट्रिंग नंबर को कन्वर्ट किया है। तो हम मैं ऐसे भी इसे रन टाइम कन्वर्ट करूंगा, कुछ ऐसा लिखूंगा जैसे कि ऐसे भी लिखूंगा। सो इट विल बी सिंपल, मोर सिंपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो हम एक स्ट्रिंग नंबर को प्योर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और अभी ये मुझे आउटपुट 30 ही देगा, बिकॉज अभी हमने इसे फोर्सफुली बाहर से कन्वर्ट किया है। तो जब हम प्रोग्रामिंग से कन्वर्ट करते हैं किसी वेरिएबल के डेटा को, तो उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। जब जावास्क्रिप्ट अंदर ही अंदर उसे कन्वर्ट करती है तो इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, ओके। ओके सर, ओके सर। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? यस कंसेप्ट इज क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हो, आपको बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, और उन इश्यूज को रिजोल्व कैसे करना है ये आपको पता नहीं रहता। तो आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, लेकिन आपको यही पता नहीं कि वो करता क्या है वो कोड। एंड मेनी ऑफ द टाइम मेनी पीपल राइट। कॉपी दिस नंबर कोड। बहुत सारे लोग ये नंबर वाला कोड कॉपी तो करते, बट उन्हें यही पता नहीं रहता। और इंटरव्यू में अगर ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू आपका बहुत ही हाई लेवल का नहीं होता है, याद रखिए। बिकॉज हाई लेवल का कब होगा? जब आपको बेसिक्स पता है। इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गो विद इट, ओके। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यस। तो जो आपका जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर द फंडामेंटल्स थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे जब हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम एक्चुअली यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? वी आर एक्चुअली डूइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके, वी आर डूइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हम जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे हैं? 10 प्लस 20, तो मैं प्लस कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं 10 माइनस 20 भी कर सकता हूँ, दैट वी कैन डू द सब्सट्रैक्शन। उसी तरीके से हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 20। उसी तरीके से मैं उसे डिवाइड भी कर सकता हूँ, जैसे 10 डिवाइड बाय 20।
और हम उसका रिमाइंडर भी ले सकते हैं। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो बेसिकली हम क्वोशिएंट लेते हैं। आपको पता है रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होता है? पता है क्या? यस, पता है। नहीं सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके फाइन। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। क्या आएगा अगर मैंने इसे, अगर मान लेते हैं कि मैंने इसे 22 से किया, तो अभी क्या आउटपुट आएगा? 2.2। डिवाइड कर रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ। 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आउटपुट आएगा? इसकी डिवीजन क्या है? 11 आएगा ना? 11 आएगा, राइट? रिजल्ट विल बी 11। लेकिन अगर मान लेते कि यहाँ पे मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए, तो 22 मॉड 2, इसका आउटपुट क्या आएगा? 22। हाँ, अभी मैं आपको ये टेक्निकली बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं तो देखिए, डिवीजन अगर आप करते हो तो अब हम मैथ में ऐसे ही डिवीजन करते हैं, हाँ 2 डिवाइड बाय 22। तो आपने 11 कहाँ से लिया? यू हैव यूज समथिंग लाइक दिस, हाँ, राइट? यस 22 सर। बराबर ना? और फिर आपने हाँ, यहाँ पे 0 आया। तो 0। ये जो हाँ 11 है, ये आपका हाँ, क्वोशिएंट होता है। और ये जो बराबर। नीचे वाला आएगा ना, ये आपका हाँ मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर होता है। हाँ, तो 0.44। तो यहाँ पे आपको 0 आएगा, बिकॉज हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके, वी कैन डिवाइड 22 बाई 2, तो आपको यहाँ पे नीचे 0 ही आएगा। मॉड मतलब परसेंटेज नहीं होता है, ओके मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, आपके डिवीजन ओके। का रिमाइंडर। हाँ हाँ, ओके, यहाँ पे परसेंटेज साइन नहीं है, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। मॉड्यूलर। तो ओके सर। यहाँ पे जो हमें परसेंटेज दिख रहा है, ये टेक्निकली मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देगा, किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर। तो जब आप स्लैश यूज करते हो तो आपको क्वोशिएंट मिलता है, और जब आप मॉड यूज कर परसेंटेज यूज करते हो, मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तो अगर मान लेते हैं कि मैं किसी नंबर को, इफ आई एम गोइंग विथ लाइक से, अभी हम एक दूसरा नंबर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2, और जैसे मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी इसका मुझे क्वेश्चन क्या आएगा? 5। ओके, 5 पॉइंट, हम वो भी बताएंगे। तो मुझे यहाँ पे 5.5 इसका क्वेश्चन आएगा। ओके, बिकॉज कैसे रहेगा हम वो भी मैं थोड़ा सा एक बार मैथमेटिकली जाता हूँ। तो 5 माइनस 10 आएगा, तो यहाँ पे मुझे 1 वैल्यू आएगी। ओके, फिर मैं पॉइंट दूंगा तो इसको 0 मिल जाएगा, राइट? और फिर मैं यहाँ से फिर से 5 से डिवाइड करूंगा उसे, तो ये 10 हो जाएगा। तो अभी आपको 0 आएगा, राइट और रॉन्ग? ऐसे आता है, राइट? ऐसे आएगा। तो अभी बताइए, क्या ये नंबर प्योरली 2 से डिवाइडेड है क्या? 11 नहीं। नहीं है, आपको पॉइंट यूज करना पड़ता है इसके लिए। हाँ तो अगर मैं इसका अगर मैं इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर लेता हूं, मतलब रिमाइंडर, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे कैलकुलेट होता है वो आप समझिए। अगर मैं 5 यहाँ पे दूंगा, 2 5 आर 10। ओके, यस और सर। यहाँ पे 1 आएगा, तो इसके बाद ये 2 से छोटा है। तो अगर ये 2 से छोटा है तो यही आपका मॉड्यूलस आउटपुट होता है। अगर दिया हुआ नंबर अगर उससे छोटा है तो ये आपका मॉड्यूलस आउटपुट होगा। ओके। ओके, ये बात याद रखिए। हाँ, लेकिन अगर आप नोटेड सर। टू डिवाइडेड बाई 11 अगर कर रहे हो, तो आपको जो डिवीजन है वो 5.5 आएगी, बिकॉज 5.5 सेटलमेंट करती है। क्वेश्चन क्या यस। करता है? चीजों को सेटल करता है।
और मॉडुलस क्या देता है? मॉडुलस आइदर आपको 0 देगा या फिर उस नंबर से छोटा नंबर आपको देगा, बिकॉज वो सेटलमेंट नहीं करता है। वो चेक करता है कि वो नंबर अगर प्योरली डिवाइडेड है तभी आपको 0 देगा, अगर प्योरली डिवाइडेड नहीं है तो वो उसके लोअर नंबर देगा, जो भी रहेगा नीचे वो लोअर नंबर देगा। 1 2 से छोटा है तो आपको 1 आउटपुट आएगा। आप ये टेस्ट कर सकते हैं, चलिए हम इसे टेस्ट भी करते हैं। ओके, सो आई विल यूज लाइक से 11 और यहाँ पे भी मैं 11 यूज करूंगा। सो console.log and just I will say a div D. comma d और मॉड्यूलस को e है, so I will just say console.log मॉड्यूलस, ओके, एंड जस्ट आई विल से E. सो अगर मैंने इसे सेव अगर किया तो आपको वो दोनों आंसर आएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। आ रहे? Yes, sir. बिकॉज डिवीजन क्या करता है? सेटलमेंट करता है, वो सेटलमेंट करते जाता है। ओके, जब तक सेटलमेंट नहीं होती तब तक वो आपको वो नंबर देगा, ये याद रखिए। Okay. बट Yes. मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस आपको जो रिमाइंडर आता है ना, पहले वो चेक करता है कि अगर रिमाइंडर दिए हुए नंबर से अगर मान लेते हैं कि वो अगर वो कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, if it is going with a pure division then only it will provide you a 0, else वो उससे सेटलमेंट अगर नहीं हो रही है तो जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू है अगर वो उस नंबर से अगर छोटी हो रही है तो डायरेक्टली आपको वो रिटर्न में आ जाती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो मॉडुलस बेसिकली Yes. आपको रिमाइंडर देता है, बट ये अनसेटल्ड रिमाइंडर देता है। मतलब आपको पता है कि डिवीजन से आप 11 को सेटल्ड कर सकते हैं, 0 आप रिमाइंडर ला सकते हैं, बट मॉडुलस आपको कभी 0 देगा नहीं, वो अनसेटल्ड वैल्यू देगा आपको। अगर वो सेटल नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन से अगर सेटलमेंट हो रही है तो वो फ्रैक्शन वाला आउटपुट नहीं देता है, वो अनसेटल्ड वैल्यू देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 मिलता है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes. तो यू विल गेट 5.5 ओवर ईयर एंड यू विल गेट 1 ओवर ईयर। ये कभी कभी इंटर में 1. पूछा जाता है कि अगर मैं 11 से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 5.5 आ रहा है, एंड इफ आई एम गोइंग विद द मॉड्यूलस देन आई एम गेटिंग 1, सो एक्सप्लेन हाउ। तो आप ये डिवीजन का लॉजिक उन्हें बता सकते हैं। ओके, Yes, sir. Yes. you can go with Understand. that. Is that clear till here? Yes. Okay, fine. So we have just wind up with the time. I will stop the recording. Just give me a minute.